Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles. This video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. Okay, so in continuation with this, चलिए बस अब इसको करना है. In an equilateral triangle ABC, एक equilateral triangle है ABC. D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. चलिए 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 फटाफट फटाफट. हो गया? डन डन डन. फटाफट करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. तानिया भी एब्सेंट है ना? शदाई, तानिया और कौन इधर? Who else? और यक्षिता. और कोई हो गया? डन डन डन. ओके, सो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है A, B और C. ठीक है. D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट, तो यहाँ पे एक D पॉइंट है. ठीक है.
लेट्स से भाई साहब आपका डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक डी अपन ने पॉइंट लिया हुआ है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल, ठीक है, एंड डी बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या है, टू प्रूव 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए फटाफट करना है, कैसे करेंगे इसको। तो यहां पे क्या कर लेते हैं अपन, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन ड्रॉप परपेंडिकुलर AX टू BC। ठीक है, तो यहां पे ड्रॉप परपेंडिकुलर AX, तो हमने एक परपेंडिकुलर AX ड्रॉप किया है टू BC। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके। तो अपन अभी क्या बोल सकते हैं, बोलो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल, तो यहाँ पे प्रूफ में इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ABX, इन ट्राइंगल ABX, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, बोलो। ठीक है, तो AX के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, AX के स्क्वायर को वी कैन राइट इट एज AB स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, AX का स्क्वायर। सो दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी अब हम कौन से ट्राइंगल में, ADX में। ठीक है, इन ट्राइंगल ADX, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो AX का स्क्वायर प्लस DX का स्क्वायर, AX का स्क्वायर प्लस DX का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, द रीजन विल बी पाइथागोरस थ्योरम, here also the reason will be what, Pythagoras theorem, here also the reason will be Pythagoras theorem। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो AD का स्क्वायर माइनस DX का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, अभी अपन फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे AB का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर, देखो दोनों तरफ क्या है, AX का स्क्वायर है, इधर क्या है AB का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर, इधर क्या है AD का स्क्वायर माइनस DX का स्क्वायर, इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस DX का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल, AB का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस DX का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो AB का स्क्वायर, अभी ध्यान दो यहाँ पे BX कितना है BC का, देखो BX, ये X क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल्स, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स, बोलो ABX एंड ACX, इन ट्राइंगल्स ABX एंड ACX क्या क्या बराबर होगा, देखो AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, एंगल AXB इज इक्वल टू एंगल AXC, ठीक है, और क्या बोलो बराबर होगा, बोलो AX इज इक्वल टू AX, कॉमन साइड है भाई साहब, ये दोनों बराबर क्यों हैं 90 डिग्री, ये दोनों बराबर क्यों है भाई साहब, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और AX इज इक्वल टू AX, ये हो गया आपका कॉमन साइड। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACX, ऐसा बोल सकते हैं, ABX और ACX क्या हो जाएगा भाई साहब, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और रीजन क्या हो जाएगा, बोलो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, आपका हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये कॉमन साइड। ठीक है, अगर ये होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर BX इज इक्वल टू CX, BX इज इक्वल टू CX।
ठीक है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर x इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। x इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या ये समझ में आ रहा है? जस्ट 1 मिनट, इसके आगे का देख लीजिए जरा फटाफट। BC, ओके ओके ओके। तो x भाई साहब अगर मिड पॉइंट ऑफ BC है तो अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो। BC और BX में क्या रिलेशनशिप आएगा? BX और BC में क्या रिलेशनशिप आएगा? BX इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये श्रीयस मात्र भी बोले। ओके, BX यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? BX इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। और अपने को भाई साहब यहाँ पे क्या मालूम है? BX ना, BX इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो 2BX, ओ सॉरी, चलिए भाई साहब, BX इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। सो देयरफॉर अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्या हो रहा है? देयरफॉर BX इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यहाँ पे देखो क्या है, BD इज इक्वल टू 1/3 BC आपको दिया हुआ है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो। BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ठीक है। ओके, अभी आते हैं हम इस इक्वेशन में, ठीक है। यहां पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। मुझे बताइए dx कितना हो जाएगा? bx माइनस BD, ये होगा आपका dx, है कि नहीं? देखो bx माइनस, अगर हम BD करें, bx माइनस BD, ये कितना होगा बोलो? हाफ ऑफ BC माइनस 1/3 ऑफ BC। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। यहाँ पे bx माइनस BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC माइनस 1/3 ऑफ BC, तो यहाँ पे हो गया BC, ये हो गया आपका हाफ माइनस 1/3। यहाँ पे bx माइनस BD कितना हो जाएगा? dx, ठीक है। सो दिस विल बी dx इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हो गया BC, और इधर कितना हो गया? 6, तो 3 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? BC/6। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई? BC/6, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे bx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ BC डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे bx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ BC डालेंगे और dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ BC डालेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या भाई साहब? इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक, ये कोई बंद कर देगा क्या? उसको बंद कर दोगे क्या? देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? BD क्या है? BD क्या है? 1/3 ऑफ BC है। तुमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? यू विल हैव टू प्रूव बेसिकली दैट 9AD का स्क्वायर 7AB के स्क्वायर के बराबर है। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया तुमने भाई साहब? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो आपने पहले क्या प्रूव किया? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो BX और CX क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब x क्या हो जाएगा आपका? मिड पॉइंट ऑफ BC। x क्या हो जाएगा आपका? मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। क्लियर है? ओके, अभी आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं दो ट्रायंगल्स पे। पहला कौन सा? ABX पे, और दूसरा कौन सा? ADX पे। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अपन ने क्या किया? उधर AX का स्क्वायर रखा और इधर क्या किया? AB का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई किया है भाई साहब? ADX पे। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस DX का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर माइनस DX का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर। दोनों तरफ आपका AX का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। AB का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस DX का स्क्वायर। देखो आपका पूरा सवाल जो सजता है ना, वो कैसे सजता है कि आप मतलब देखते हैं कहां पे आपके एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो जाते हैं। वेयर डू यू फाइंड द एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज? तो मतलब कौन सा चीज आपके लिए नोन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे BX आपके लिए नोन नहीं है और DX आपके लिए नहीं है, तब आप इस पे जाएंगे भाई साहब। अभी BX की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं x इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अपन बोल सकते हैं BX इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। और BD तो आपको दिया ही हुआ है 1/3 ऑफ BC। अभी रही बात यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी, तो BX को अपन BC में, देखो सवाल में जो प्रूफ चाहिए ना उसको देखते रहो। AD और AB में रिलेशनशिप चाहिए तुमको। AD मिल चुका है, ठीक है। AD और AB तो नहीं मिला है, लेकिन AB को अपन ले आएंगे। अगर अपन BC में लाते हैं ना तो BC और AB बराबर है, ठीक है। तो अभी हमने को क्या डाइजेस्ट करना है? AB, ठीक है, और AD। ये AB इधर है, AD इधर है। BX और DX इसका गोलमाल है, ठीक है। तो BX का अपन ने निकाला भाई साहब, ये आ गया, और BD का इतना आ गया। तो अभी देखो BX इज हाफ ऑफ BC और BD इज 1/3 ऑफ BC। तो BX माइनस BD कितना हो जाएगा? DX। अगर मैंने इसको माइनस किया, BX माइनस BD, यहाँ पे क्या होगा? हाफ ऑफ BC माइनस 1/3 ऑफ BC। BC को बाहर रखा,
हाफ माइनस 1/3, ये हो गया dx। तो BC विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2/6, दैट इज BC/6। इससे ये प्रूव होता है कि आपका dx कितना हो जाएगा, bx/6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम bx की वैल्यू इतनी है। अभी हम फिर से इस इक्वेशन को पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन अभी इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, बोलो। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहां पे अपन लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर। बच्चा पार्टी BX कितना हो जाएगा, BX इज हाफ ऑफ BC। तो यहां पे आप लिखोगे भाई साहब हाफ ऑफ BC का ये पूरे का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस DX का स्क्वायर। DX कितना हो गया बोलो, BX/6 का स्क्वायर। सो BX/6 का, सॉरी BC/6 का स्क्वायर, BC/6 का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहां पे हो गया आपका कितना, AB का स्क्वायर, दिस विल बी AB का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 36। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 36 से, ठीक है। 36 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 36 AB का स्क्वायर माइनस 9 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD का स्क्वायर, ठीक है, माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम यार इधर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 9 माइनस 1 तो 8 हो जाएगा। AD का स्क्वायर, देखो यहां पे AB और BC बराबर है, AB और BC बराबर है भाई साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 36 AB का स्क्वायर माइनस 9 AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। और इस BC की जगह पे भी वैसे ही लिख सकते हैं, 36 AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, है कि नहीं भाई साहब? यहाँ पे यार कुछ कटम नहीं हुआ क्या, 36 कटा, 36 AD का स्क्वायर और यहाँ पे 9, 36 माइनस 9 कितना हो गया, 25 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। AB इज इक्वल टू BC, तो यहाँ पे हो गया आपका 36 AB का स्क्वायर माइनस 9 AB का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 25 और इसको इधर ले लिया तो हो गया 24, है ना, नहीं 25 और एक इधर ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ये 36 माइनस 9 27, है ना, 27 और इसको इधर लिया, हाँ अब हो जाएगा भाई साहब। तो 27 AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना बचा भाई साहब आपका, 36 AD का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी 28 AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो भाई साहब, 4 से डिवाइड कर लेंगे अगर हम, तो 4, इसको पूरे 4 से डिवाइड करो तो 4 9 जा 36, 9 AD का स्क्वायर और यहाँ पे 7 AB का स्क्वायर, ठीक है। 7 AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD का स्क्वायर, 7 AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, आंसर प्रूव, समझ में आता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भाई साहब आपको दिया हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं भाई साहब, 60 डिग्रीज के, और सारे साइड्स आपके इक्वल होते हैं। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको ये प्रूव करना है भाई साहब, ठीक है। सो D इज अ पॉइंट ऑन BC, तो आपने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइन 60 से किया है, आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इन लोग समझ जाएंगे, स्टेट बोर्ड वाले के CBSE वाले नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया हुआ है। खैर छोड़िए, तो ये इसमें जो प्रूफ दिया हुआ है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू, यू कैन डू दिस बट यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड। तो मैंने जैसे समझाया वैसे कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए ये हो गया ओवर आपका। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ट्राइंगल्स आपका ओवर होता है,
नाउ व्हाट वी विल डू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। या देखो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। जो आपका सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है वो ये है भाई साहब, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, है ना भाई साहब। देखो अगर एरियाज, अगर एक ट्राइंगल है उसका एरिया, लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लेट्स से हाफ इंटू बेस, लेट्स से B1 लिया हमने और यहाँ पे हाइट लिया h, ठीक है। और लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल लेट्स से PQR लिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ, जो इसका बेस होगा B2 और यहाँ पे क्या है इक्वल हाइट, तो इसका भी भाई साहब h हो जाएगा। तो अगर मैंने इन दोनों का एरिया का रेशियो कर दिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू B1 इंटू H अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू H। तो जब भाई साहब आपका हाफ कैंसिल और B, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स हैं दोनों, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है, क्लियर है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है। वही भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस, अगर भाई साहब यहाँ पे ऐसा हो जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लेट्स से आपका है भाई साहब क्या, हाफ इंटू बी, यहाँ पे बेसिस आपके बराबर है, हाइट्स अलग अलग है, h1 है, और यहाँ पे लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ले रहे हैं अपन, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू h ऑफ 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दिस विल बी हाउ मच, बच्चा भाई बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू h1 अपॉन हाफ इंटू बी इंटू h2। तो भाई साहब ये कैंसिल h1 अपॉन h2। तो एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इसी पे कुछ सवाल अपन करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा एक तोप थियरम नहीं है, लेकिन हम इससे वैसा कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। बहुत आसान सा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, लेट्स से ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस दैट इज 9 इंटू हाइट दैट इज 5, ठीक है, हाफ इंटू बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, हाफ कैंसिल, ठीक है। और बोलो क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ये 2 3 6, नहीं 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 15, 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया आपका 3/4, ठीक है, 3/4। सिंपल भाई साहब, ये क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम चलिए भाई साहब अगला सवाल आपको अटैक करता हुआ, चलिए फटाफट इसको करना है भाई साहब, चलिए जल्दी क्विक एवरीवन। बड़ा तू सवाल नहीं कर रहा है ना, टाइम पास करा तू। हो गया, डन भाई साहब। कॉर्डियो के भाव का सवाल है भाई साहब, कोई इसमें, ओके। BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। BC का वैल्यू भाई साहब कितना दिया हुआ है, देखो, अरे भाई साहब BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए डी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस दैट इज ए बी इंटू हाइट दैट इज बी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू ए बी दैट इज बेस इंटू हाइट दैट इज ए डी। तो ये तो भाई साहब दोनों का कैंसिल हो जाएगा, बी सी अपॉन ए डी कर लो, कितना हो जाएगा, बी सी इज 4, ए डी इज 8, सो दैट विल बी 1/2। खत्म भाई साहब, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम क्लियर क्लियर क्लियर। चलो भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। PS क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर टू आर क्यू है। देखो PS इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। आर क्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब, आर क्यू की वैल्यू, सो दिस वैल्यू इज, आर क्यू की वैल्यू जो है वो है आपकी 6, ठीक है। आर क्यू की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है भाई साहब, 6। और PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, PS की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है। PS की वैल्यू भी 6 है भाई साहब। PR की वैल्यू देखो, PR मतलब ये टोटल, ठीक है। ये वाला जो PR है आपका दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 12, सो दिस इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 12, ठीक है। फाइंड QT, आपको यहाँ पे QT को फाइंड आउट करना है। चलिए भाई साहब फटाक से करनी है। हो गया, डन डन डन। संजम तो टाइम पास कर रहा है, तब से टाइम पास कर रहा है।
हो गया? उफ, अरे भाई साहब यहाँ पे देखो, ये वाला किसी का भी आएगा आंसर, एनीवेयर क्लोज टू द आंसर। तो कहाँ तक पहुंचे, क्या सोचा? क्या सोचा ही नहीं? अरे जान दो भाई साहब, देखेंगे बाद में। क्या कहाँ तक पहुंचे? किसी का भी कहीं तक आंसर आया कुछ? हाँ, इस ट्राइंगल को देखो, इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन। अपने को ये मालूम है, ये मालूम है, क्या अपन आर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? देखो पी क्यू का, सॉरी, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो अगर ऐसा है तो पी आर का स्क्वायर कितना है, बोलो? 144। पी एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस आर एस का स्क्वायर। तो 144 माइनस 36 इज इक्वल टू आर एस का स्क्वायर। 8 प्लस 6 14, कितना आ रहा है? 108। तो ये आ गया आपका आर एस। फंस जाओगे भाई साहब यहाँ पे तो। 9 12 इंटू 9 से 108 होता है। 12 को और तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 9 है ना। तो 4 का बाहर आया 2, तो ये हो गया भाई साहब आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस 4 का 2 बाहर आया और इस 9 का 3 और अंदर बचा 3। सो भाई साहब आर एस की वैल्यू कितनी हो गई? 6√3। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आर एस की वैल्यू हो गई 6√3। 6√3। तो मतलब ये आर एस पूरा का पूरा भाई साहब कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 6√3। ठीक है, तो मुझे बताओ क्यू एस कितना हो जाएगा? 6√3 माइनस 6। ठीक है, सो आपका भाई साहब क्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो? आर एस माइनस आर क्यू, दैट विल बी हाउ मच? 6√3 माइनस 6, दैट इज 6 इंटू √3 माइनस 1, 6 इंटू 6 इंटू √3 माइनस 1, ये हो गया भाई साहब आपका क्यू एस। ठीक है, ओके। तो अभी बताइए भाई साहब यहाँ पे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये पूरा वाला ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका? पी एस आर। ठीक है, माइनस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? पी क्यू एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर माइनस, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? पी क्यू आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, बोलो ऐसा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर कितना हो जाएगा? पी एस आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया भाई साहब हाफ। ठीक है, दिस विल बी हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे भाई साहब? 6√3। हाइट कितना है भाई साहब? इंटू 6, ये हो गया पी एस आर का। ठीक है, मुझे बताइए पी क्यू एस का कितना हो जाएगा? पी क्यू एस हाफ इंटू बेस कितना हो गया भाई साहब? क्यू एस का क्यू एस कितना हो जाएगा भाई साहब? क्यू एस इज 6 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, इंटू हाइट कितना है भाई साहब आपका? 6। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस दैट इज 12 इंटू हाइट दैट इज क्यू टी। यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई साहब, इसको डिवाइड कर दो किससे? हाफ से, तो सारे हाफ मर जाएंगे। ठीक है, ऑल दीज हाफ्स आर गोइंग टू गेट डाइड। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 36√3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 6 36, 36√3, 36√3, 6 6 36 इंटू -1, तो ये हो गया -36, है कि नहीं? माइनस हो गया प्लस। क्या ये समझ में आ रहा है? 6 6 36, 36√3, ये 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 36, और इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस के साथ आ जाएगा -36√3। ये वाला 6 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -1 के साथ, तो कितना आया? -36 और ये माइनस, तो ये हो गया +36। क्लियर है? ओके, यहाँ पे कितना हो गया बोलो? दिस विल बी 2, ये तो कर गया 12 QT। ठीक है, ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल। 36 इज इक्वल टू 12 QT, सो देयरफॉर QT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36/12, दैट गिव्स यू हाउ मच? 3।
क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए इसको करना है भाई साहब, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी 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 फटाफट। हो गया? पेन का सिगरेट बना के पी लिए तो जरा सवाल कर लेंगे। क्या आंसर आया? अरे भाई साहब जल्दी करना है। यहां पे क्या है देखो, एपी क्या है? परपेंडिकुलर टू बीसी है। एडी और बीसी भाई साहब आपका पैरेलल है। आपको यहां पे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। ठीक है, क्लियर है? कितना हो जाएगा बोलो यहां पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। बोलो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू, इसको कर लो ए बी सी है ना, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बी सी इंटू ए पी, है कि नहीं? बेस इंटू हाइट, इसका क्या हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू इसका बेस तो क्या है? ए पी ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बेस कितना है? बीसी, और हाइट कितना है? एपी। क्लियर है? ओके। ट्राइंगल बीसीडी में कितना हो जाएगा बोलो? ट्राइंगल बीसीडी में इसका भी बेस तो वही है बीसी, और इसका हाइट कितना हो जाएगा? आई डीसी। नहीं, इसका हाइट कितना होगा? आई तिवारी, बीडी हाइट होगा, सेम होगा भाई साहब। देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि भाई देखो ये डिस्टेंस है एपी, आगे भी चलोगे तो यही एपी डिस्टेंस ही रहेगा ना। ठीक है, सो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस द डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम। और डिस्टेंस को अपन कैसे मापते हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपन परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल ऑल्सो बी एपी। ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल का भी हाइट एपी ही होगा, ये वाले ट्राइंगल का भी हाइट एपी होगा। अगर आपने भाई साहब लेट्स से ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल भी दिया इधर, ठीक है, यहां पे अगर आपने परपेंडिकुलर डाल भी दिया तो लेट्स से अगर आपने इसको dx बोला तो आपका क्या हो जाएगा बोलो? AP विल बी इक्वल टू dx, अगर हमने ऐसा परपेंडिकुलर डाला भी। ठीक है, क्यों? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी, हम यहाँ पे dx की जगह पे AP लिख सकते हैं, तो ये दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली 1। तो इसीलिए एक थियरम आता है जिसको अपन बोलते हैं, इफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallels are equal। ठीक है, तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, ये एरिया भाई साहब बराबर होगा।
आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब झपट पड़ते हैं दूसरे सवाल पे, चलो फटाफट भाई साहब। तू सवाल नहीं कर रहा है तू। ओके, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है आपका, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन फाइंड AP। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है भाई साहब आपका PBC है, ठीक है, PQB और क्या है भाई साहब आपका PBC। ध्यान दो PQB का हाइट क्या है, PQ और PBC का इसका हाइट क्या है PQ, सो दे हैव द सेम हाइट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद द सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, है कि नहीं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है भाई साहब, हाफ इंटू हाइट दोनों का सेम हो गया तो B1 अपॉन B2 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब PQB का बेस कितना हो गया BQ, है ना, और इसका PBC का बेस कितना हो गया, PBC का बेस हो गया आपका BC, ठीक है। यहां पे अपन लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए ये तो निपट गया। फिर अपना सेकंड वाला भाई साहब क्या है, अरे भाई साहब ये क्या हो जाएगा, सेकंड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका ABC, ठीक है, ABC। चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पे PBC और भाई साहब आपका ABC, दोनों का बेस सेम है, देखो BC और BC है ना, PBC का बेस BC, ABC का बेस BC, तो इनका भाई साहब रेशियो क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, ठीक है। PBC का हाइट कितना है PQ और ABC का हाइट कितना है AD, है ना भाई साहब AD। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स with same base is equal to ratio of their heights, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। अभी ये वाला हो गया, इस पे आते हैं भाई साहब, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। थर्ड वाला है भाई साहब आपका क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या भाई साहब ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा ABC, ठीक है। और आप देखो ADC दोनों का हाइट कितना है AD, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू बेसिस BC अपॉन DC। चाहिए समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। ABC का बेस कितना हो गया BC और ADC का बेस कितना हो गया DC, ठीक है। तो यहां पे अपन बोलेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ सेम यहां पे भाई साहब हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी आते हैं हम इस पे भाई साहब, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन PQC, ठीक है। चलो भाई साहब यहां पे लिखते हैं अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या भाई साहब
PQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका PQC, इसका कैसे करोगे भाई साहब, ADC और PQC, हाँ पैरेलल, क्या पैरेलल, PQ और AD पैरेलल हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन PQC कितना हो जाएगा बोलो, बोलो जल्दी। ओके चलिए भाई साहब करते हैं इसको, देखो यहां पे सीधा सीधा लिखते हैं ना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा लिख दो, हाफ इंटू बेस दैट इज क्या हो जाएगा DC इंटू हाइट कितना हो गया भाई साहब आपका AD, है ना। यहां पे कितना हो जाएगा हाफ इंटू QC, ओके, बेस इंटू PQ, ये कौन चपड़ 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 से बोले, ठीक है। DC तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके तो अपना भाई साहब यहाँ पे ठीक है DC बाई QC आ गया, बस ये आंसर हो जाएगा आपका, हाँ और क्या आंसर होगा, और कुछ आंसर होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। देखो भाई साहब आपका यहाँ पे QD बाई DC है ना, तो और कुछ होने का संभावना है ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब करते हैं, खत्म हो गया, बहुत बढ़िया।